Hello students. So students, as you know that in the last part of the video, we have started construction chapter, which is the chapter number 11 of your class 10th maths book. Okay. Students, in the last part, we have studied how to divide a line segment in the particular given ratio internally. Okay. So today we will start a new topic, that is how to make construction of a tangents to a circle. Okay. In this video, we will know how to draw the tangents to a circle. Okay. This is the second part and this is the last part of this construction chapter. Because as you know that some topics has been deleted. So the first topic was how to divide a particular line segment in the given ratio, which is covered in the part 1. And in the part 2, I am going to tell you how to draw a tangent to a circle. Okay. So students, when you studied circle chapter, which is the chapter number 10 of your class maths book, you know that at one point on the circle we can draw only one circle, and when a point is lying outside the circle we can draw two tangents. Okay, I am going to repeat the thing again. Students, I told you tangents can be drawn in two conditions only. What are the two conditions? When any point is lying on the circumference of the circle, so from that point only one tangent can be drawn. Okay, this thing you have studied in the chapter number 10. And the second case, when the point is lying outside the circle, means suppose there is a circle and a point is lying outside the circle, so from that point only two tangents can be drawn. Okay, so one by one we will study both the conditions. So in the first part, student, in the first part, we will able to know how to draw a tangent from a point which is lying on the circle. Okay, so we will write construction of tangent, construction of tangent to a circle, from a point which lies on the circle, The meaning of on the circle means the point is lying on the circumference of the circle. Okay, so student, this is the first construction we will study in tangents. So first construction is that construction of tangent to a circle from a point which lies on the circle. Okay, so student, as you know the property of tangent, we all know that tangent to a circle touch the circle or intersect the circle at only one point, and we all know if there is one point on the circle, so from that point we can draw only one tangent. Okay, so suppose student, I have drawn a circle like this. Okay, if circle is not proper, then pardon me, because I don't have any compass or anything, so I am going to tell you. Suppose this is a circle with center O. Okay, and suppose there is a point P on the circumference of the circle, and from that point you have to draw one tangent. Okay, because if any point is mentioned, so from that point only one tangent can be drawn. Okay, when the point is lying on the circle, so suppose it is a circle, its center is O, and any point P is lying on the circumference of the circle. So from that point we have to draw the tangent. Okay, from this point we have to draw the tangents. So student, you have studied one theorem, that is the angle between tangent and radius is equal to 90 degree. The angle between the tangent and the radius of the circle is 90 degree. Means the angle between radius and tangent is equal to 90 degree. मतलब कि radius और tangent के बीच का angle कितना होता है? 90 degree. So we have to draw a tangent from this point. So what do? Whatever point you will take on the circumference of the circle, you will join that point to the center of the circle. Okay? So when you will join this O to P, when you will join this O to P, you will get radius
you will get radius because OP will be the radius. कोई भी पॉइंट अगर हम सर्कमफ्रेंस पे लेते हैं और उसको हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो डिस्टेंस हमें मिलता है वो क्या होती है, रेडियस. ठीक है, सो इट मींस दैट इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट P and we know that the angle between tangent and radius is 90 degree. So what we are going to do at point P we will make 90 degree. ठीक है, at point P we will make 90 degree and you all know how to make 90 degree. What you will do, you will put your compass at P and with the pencil you will take an arc like this. ठीक है, and from here you will cut one arc, then from here you will cut and one arc, and from these two arcs you will cut another arc like this. ठीक है, so by this you can make 90 degree and when you will join this P to this point of intersection of these two arcs you will get a line which will be the tangent. Okay, so this line will be the tangent to the circle. ठीक है, this line will be the tangent to a circle. Tangent is a line. Okay, tangent is a line which touch the circle at one point. ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, क्यों टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है. और हमारा क्या कंस्ट्रक्शन था, हमारा कंस्ट्रक्शन ये था, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट. सो वी नो दैट if a point means if there is only one point, so from that one point we can draw one tangent only and the radius angle between the radius and tangent is 90 degree. So suppose you have to draw a tangent from a point which is lying on the circle. So first you will draw a circle. First you will draw a circle like this. Then when you will draw the circle, its center suppose O. And on the circumference of the circle you can take any point. So I have taken P. And from that point P, I have to draw a tangent. So what you will do? First you will make a radius of the circle. And how will you make it? When you will join this O to P. Okay? So suppose this will be the radius. And we have to construct tangent at point P now. So what you will do? We know now the angle between radius and tangent is 90 degree. So at point P, we will draw 90 degree. Okay? When we will draw 90 degree, so we will get a line like this, and this line will nothing but the tangent of the circle. So by this way you can construct a tangent from a point which is lying on the circle. ठीक है, बस आपको एक थ्योरम याद रखना है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. अब इसी तरह आप कैसे भी बना सकते हो. मान लो यहाँ पे आपने पॉइंट Q लिया होता और Q पे टेंजेंट बनाना होता, तो फिर से Q को भी आप O से ज्वाइन कर देते. ठीक है, और यहां पे टेंजेंट बनाना है तो आप इस Q वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बना दो. तो जब 90 डिग्री बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा और यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. व्हेन यू हैव टू मेक अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द सर्कल, तो अगर कोई पॉइंट सर्कल पर होता है तो उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है. ठीक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है, मतलब कि सर्कल के सर्कमफरेंस पे है, तो उस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ होता है. ठीक है, और उसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है तो हम एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. तो जो भी पॉइंट पे आपको बनाना है उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो तो रेडियस हो गया, और जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट पे 90 डिग्री बना दो. तो जब 90 डिग्री बनाओगे तो जो लाइन बनाओगे आप 90 डिग्री के लिए, वही लाइन उस सर्कल का क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स. ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट a tangent from a point which is lying on the circle. One more thing, if someone asks you how many tangents we can draw on a circle, how many tangents we can draw on a circle, so you will say infinite, because on the circumference of the circle there will be infinite points. So if infinite point will be there, and we all know that tangent touch the circle at one point, so from each point we can draw one tangent. So from infinite point we can draw infinite tangents. अगर ये कोई पूछे तो, अगर कोई ये पूछे कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी पॉइंट से, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, मान लो ये सर्कल है और इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट, क्योंकि इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट. ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, आ पॉइंट मीन्स वन पॉइंट. If a point is lying on the circle, so from that point how many tangents you can draw? So only one tangent.
एक पॉइंट से हमेशा एक टेंजेंट, ठीक है, एक पॉइंट से हमेशा एक टेंजेंट। कब? जब वो पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो। करना क्या है, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देना है। मुझे पॉइंट पी पे बनाना था, तो पॉइंट पी को मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया, सो दैट विल बी रेडियस, एंड वी नो दैट द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 degree. So at point P I have drawn 90 degree, and when I have drawn 90 degree, so that line will be the tangent to this circle, and this point P will be the point of contact, okay, and this angle will be 90 degree, angle P. So I hope it is clear to you. Now we will move to the second part, that construction of a tangent to a circle from a point which lies outside the circle. अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। केवल दो केस में टेंजेंट ड्रॉ होता है। पहला केस जब वो पॉइंट सर्कल पर हो, और दूसरा पॉइंट जब वो पॉइंट सर्कल के बाहर हो। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट विल बिकम अ सेकेंड, ओके। सो प्लीज नोट डाउन इट, आफ्टर दैट वी विल कवर सेकेंड पार्ट, ओके। Now student, the second part is that construction of a tangent to a circle from a point which lies outside the circle. अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो टेंजेंट कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो वहां से एक टेंजेंट, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल, ठीक है। ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ा है तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से पहले आप चैप्टर नंबर 10 कवर करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इन दिस केस वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट विच इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ, सपोज आई हैव ड्रॉन अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है। सपोज आई हैव ड्रॉन अ सर्कल लाइक दिस, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सपोज O, ठीक है, सपोज O, एंड अ पॉइंट, एनी पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, मतलब कि सर्कल की क्या है, वो बाहर। तो सपोज देयर इज अ पॉइंट P which is outside the circle. In the first case point P was on the circle, and in this case point P is outside the circle, ठीक है। And from this P we have to draw tangents to the circle. So first thing you should know that if a point is lying outside the circle, so from that point we can draw two tangents. How many tangents? Two tangents on the circle, and the length of the both tangents will be equal, ठीक है। Now what we will do, we have to draw tangent from point P which is lying outside the circle. So our first step will be that we have to join this O to P. So we will write first join OP, ठीक है। जो भी पॉइंट है उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दो। So when you will join the center to this point, you will get a line segment OP, ठीक है। जब आप इस P को O से ज्वाइन करोगे, so you will get a line segment OP, ठीक है। तो first step will be that. Now what you will do in the second step, you have to draw the perpendicular bisector of OP, ठीक है। You have to draw the perpendicular bisector of OP. जो आपने O और P को ज्वाइन किया है, तो जो लाइन सेगमेंट मिला है उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, draw the perpendicular bisector of, it is very important, okay, यही आता है एग्जाम में, draw the perpendicular bisector of OP, ठीक है। यहां मैं साथ साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दे रहा हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस का आर्क O से ऊपर और नीचे कट करेंगे, और सेम ही हम लोग P से कट करेंगे। सो फ्रॉम फॉर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक O एज अ सेंटर, एंड आई विल टेक द डिस्टेंस विच इज जस्ट मोर देन द हाफ ऑफ OP। जो भी OP का हाफ होगा उससे हम लोग ज्यादा का आर्क लेंगे, ठीक है। मान लो OP हमारा 6 है, आप मेथड को कर सकते हो। OP मान लो 6 है, तो 6 का आधा कितना हुआ, 3 से ज्यादा आप कुछ भी आर्क O से भी कट करोगे ऊपर नीचे, और P से भी कट करोगे। यू ऑल नो दैट हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम टेकिंग O एज अ सेंटर, एंड आई एम टेकिंग द डिस्टेंस विच इज जस्ट मोर देन द हाफ ऑफ OP
from O. So when I will take O as a center and I will take an arc which is just more than the half of OP, so I will cut an arc like this here and here. Okay, suppose you all having compass, so you will take the arc which is just more than the half of OP. So from O you will cut up and down, and from P also same arc you will cut like this. Okay, and you will join these two. Okay, so this line will be the perpendicular bisector of OP. You all know now, when you have a line segment like AB and you have to draw its perpendicular bisector, so what do? You take the distance, you take the arc more than the half of AB, and from A and B you cut the arc in the upside and the downside. So when you will cut it, you will do like this and you join it. So whatever line you make after joining these two arcs, this will be the perpendicular bisector of OP. Okay, so by the help of perpendicular bisector I have drawn a line, and this line will be the perpendicular bisector. So suppose this is anything you can make, MN, suppose M and N. Okay, now when you will draw the perpendicular bisector of OP, this perpendicular bisector will intersect OP at some point. This perpendicular bisector will intersect OP at some point. क्योंकि जब perpendicular bisector draw करोगे, so this point will be the point of intersection of OP and this perpendicular bisector. So suppose this point is O dash. This point is O dash. ठीक है? And because MN is the perpendicular bisector of OP, so O dash will be equal to the O dash P. Perpendicular bisector का मतलब क्या हुआ कि MN OP के परपेंडिकुलर भी है और MN OP को बाइसेक्ट भी कर रहा है. तो अगर OP को बाइसेक्ट करेगा, सो O डैश विल बी इक्वल टू O डैश P. ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं. पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट P लिया, उस पॉइंट P को O से ज्वाइन कर दिया तो OP मिला. सेकेंड स्टेप में OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दैट वाज MN. तो जैसे ही MN ड्रॉ करोगे ये OP को कहीं ना कहीं कट करेगा. सो सपोज इट इज O डैश. Now this O dash will be equal to O dash P. You can measure it. ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल. ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि ये MN OP के परपेंडिकुलर भी है और OP को बाइसेक्ट भी कर रहा है. ठीक है, OP को बाइसेक्ट कर रहा है. हम ये बोले ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, मतलब कि OP के परपेंडिकुलर और OP को बाइसेक्ट भी कर रहा है. ठीक है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर. नाउ the distance between O dash and O dash P will be equal. मतलब कि जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल. So we can write it O dash will be equal to O dash P. Now you got O dash now. So now what you will do, you will take O dash as a center. ठीक है, you will take O dash as a center, and if O dash will be the center, then O dash or O dash P will be the radius. अगर O dash center है तो यानी कि O dash या O dash P ये दोनों क्या होंगे, रेडियस ही तो होंगे. तो O dash को सेंटर मान के आप O dash रेडियस का या O dash P रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो. ठीक है, O dash को सेंटर मान के. तो क्या लिखोगे थर्ड स्टेप में, टेकिंग O dash as a center, taking O dash as a center and O dash or O dash P as a radius, draw a circle. Draw a circle. ऑब्वियस सी बात है कि जो लेंथ O dash की है वही लेंथ O dash P की है, क्योंकि दोनों इक्वल था. इक्वल इसलिए है क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो O डैश को सेंटर मान के या तो O डैश रेडियस का या O डैश P रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो. तो जब O को सेंटर मान के और इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, जब ड्रॉ करोगे आपको कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, देख रहे हो, जब आप O डैश को सेंटर माने और O डैश या O डैश P दोनों आपस में इक्वल ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, क्योंकि O डैश इसका मिड पॉइंट होगा.
तो ओ डैश और ओ डैश पी दोनों इक्वल होंगे, तो ओ डैश को मैंने सेंटर मान लिया और ओ डैश या ओ डैश पी रेडियस का एक सर्कल ज्वाइन किया। तो जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये वाला सर्कल जो ड्रॉ किया है आपने, वो पुराने वाले सर्कल को देख रहे हो कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, कर रहा है। जो नया वाला सर्कल है, द न्यू सर्कल इंटरसेक्ट द ओल्ड सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, जब आपने नया सर्कल ड्रॉ किया तो वो पुराने सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा था। तो सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, सो इफ दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो यही दोनों पॉइंट को आप जब पी से ज्वाइन कर दोगे स्टूडेंट्स, so this will be the tangent to the circle। यही हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो आप खुद देख रहे होगे जब नया वाला सर्कल पुराने वाले सर्कल को दो पॉइंट पर कट किया और उन दोनों पॉइंट्स को हमने पी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें दो लेंथ मिला, दैट इज पी ए एंड पी बी, एंड दैट विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। सो व्हाट वी विल राइट हियर, व्हाट वी विल राइट, न्यू सर्कल intersects old circle at A and B, join PA and PB, and this PA and PB will be the tangent to the circle। इसके बाद एक लाइन ऐड कर देना, that PA and PB will be the tangent to the circle। so हो गया ना, जब पॉइंट पी बाहर था तो उससे टेंजेंट, सर्कल पे कितने टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, दो, और दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल। एक थ्योरम भी है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। अब टेंजेंट की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है वो टेंजेंट, उतने बीच की डिस्टेंस ही टेंजेंट की लेंथ कहलाती है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, पी से ड्रॉ किया गया है, और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है। ठीक है, सो पी ए एंड पी बी विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड ए एंड बी विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, एंड दीज टू पी ए एंड पी बी विल बी इक्वल, दिस पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। सो बाय दिस वे you can construct tangents to a circle when a point lies outside the circle। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी ले लिया। सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर, वही लिखा हमने ज्वाइन ओपी। फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी ज्वाइन किया। तो ओपी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये ओपी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज ओ डैश एंड ओ डैश पी। सो नाउ व्हाट यू विल डू इन द थर्ड स्टेप, यू विल टेक ओ डैश एज अ सेंटर, और बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी तो ओ डैश को सेंटर मान लो, और चाहे इस रेडियस का चाहे इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। तो जब नया सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो पुराने वाले सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। तो मान लो पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और अगर उसी पॉइंट को आप पी और पी से ज्वाइन कर दोगे, ए को पी से ज्वाइन कर दो, बी को पी से ज्वाइन कर दो, तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा हमें, दैट विल बी द टेंजेंट्स टू द सर्कल, एंड बोथ द टेंजेंट्स विल बी इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो आपने ये जाना कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पर हो तब टेंजेंट कैसे बनाते हैं, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तब टेंजेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter, take a point P
which is 7 centimeter from the center of the circle, and in the last from point P, draw tangents to the सर्कल। अब इसमें ये नहीं दिया कि वो पॉइंट पी बाहर है या अंदर है, लेकिन आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही। आपको एक पहले सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो सपोज आई हैव ड्रॉन अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, सपोज इट्स सेंटर इज O, एंड एक पॉइंट है जो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है इस सर्कल के सेंटर से, ठीक है। अच्छा, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है सर्कल के सेंटर से, तो सर्कल का रेडियस 5 है और जो वो पॉइंट है वो सर्कल से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब डेफिनेटली वो पॉइंट सर्कल के बाहर ही होगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा है। जो पॉइंट P है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, और सेंटर से कोई पॉइंट अगर आप सर्कमफ्रेंस पे लेते हो तो उसकी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि वो पॉइंट कहां पर है, सर्कल के बाहर, क्योंकि रेडियस ही 5 है और वो पॉइंट 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब डेफिनेटली मतलब हुआ कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है। वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो मान लो ये पॉइंट P होगा और यही तो डिस्टेंस हमारी 7 होगी, OP will be 7 and this will be the radius, or because OP is greater than the radius, so that point will lie outside the circle। अब इसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये OP को कहीं ना कहीं कट करेगा, तो सपोज दिस इज O डैश। अब O डैश और O डैश P दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो O डैश को सेंटर मान के O डैश रेडियस या O डैश P रेडियस का एक सर्कल ज्वाइन ड्रॉ करो। तो जब ड्रॉ करोगे तो ये नया वाला सर्कल पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा, और इन दोनों को आप इससे ज्वाइन कर दोगे तो जो हमें मिलेगा PA एंड PB, दिस विल बी द टेंजेंट, ठीक है। कैसे पहचाने कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है या कोई पॉइंट सर्कल पर है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई पॉइंट P है, सपोज देयर इज अ पॉइंट P, ठीक है। आपको पहचानना है कि वो पॉइंट P कहां पर है, सर्कल पर है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है। तो अगर सपोज ए पॉइंट P, अगर किसी पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज OP, अगर वो लेस देन रेडियस है, अगर OP लेस देन रेडियस है, सो इट विल लाई, पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस उसके रेडियस से कम है तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। अगर OP की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है तो पॉइंट कहां पर होगा, पॉइंट विल बी ऑन द सर्कल। और अगर OP इज ग्रेटर देन R, अगर OP इज ग्रेटर देन R, सो पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं। आप मान लो कोई पॉइंट है और उसके सेंटर से डिस्टेंस गिवन है और उस सर्कल का रेडियस गिवन है, तो आप उसकी मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। सर्कल के ऊपर का मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पे है, ठीक है। तो अब बस क्या देखना है, उस पॉइंट के आप सेंटर से डिस्टेंस देखो। कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के आप सेंटर से डिस्टेंस देखो। अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम है तो वो सर्कल के अंदर होगा वो वाला पॉइंट। अगर वो पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस के बराबर है तो सर्कमफरेंस पे होगा। और अगर उस पॉइंट की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। इस केस में जो पॉइंट था, टेक अ पॉइंट P विच इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि जो ये पॉइंट P था ये O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर था। इसका ये मतलब हुआ जो पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा है, इसीलिए ये वाला पॉइंट P सर्कल के बाहर होगा। तो अगर आपको लोकेशन ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है तो आप ये 3 कंडीशन याद रखना, ठीक है। लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, ये आपने आई थिंक चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा।
आपको ये पता करना है कि कोई पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां पर है। तो आप बस एक चीज देखो, पहले आप ये देख लो कि वो पॉइंट सर्कल से के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है और उसको आप रेडियस से कंपेयर करो। अगर उसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम है तो अंदर, रेडियस के बराबर है तो ऑन द सर्कमफरेंस, एंड अगर रेडियस के से बड़ी है तो आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये 3 कंडीशन आप याद रखना। सो बाय दिस वे स्टूडेंट वी हैव फिनिश्ड द टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल in both the cases. First case when the point lies outside the circle, and when the point lies on the circle, and when the point lies outside the circle. केवल 2 केस में टेंजेंट बनता है, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है या कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जिसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पार्ट और इसके बाद जो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा वो, उन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप वट एवर थिंग्स आई टॉट यू टुडे दैट इज क्लियर टू यू। द रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सो दैट दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, सो टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।